Initially start what is routing, right? What is routing? Routing is basically used for communicate more than two different network to each other. Okay. So it define or depends on the routing protocols because every routing protocol have a specific route to deliver the data, the source address and the destination address. Okay. That means जितने भी हमारे पास में राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जो आपके पास में अभी डिटेल में डिस्कस होगा कि आपके पास जैसे सपोज मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरे पास में जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है तो इसमें क्या यूज फॉर देखो इसमें लिखा हुआ कि यूज राउट्स तो राउट्स टू कम्युनिकेट बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ओके they do not move information the source to destination, but it update the routing table containing the information. Clear? That means ये होगा कि जो आपका जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होगा वो आपका जिससे सोर्स एड्रेस से कम्युनिकेट करेगा अपडेट ऑन राउटिंग राउटिंग tables. Okay. So initially how many types of routing protocols? Basically, routing protocols classify into two types. Okay, first is static routing protocol, and is second is dynamic routing protocol. Static routing protocol, and second is the dynamic routing protocol. Clear? So, static routing protocol and second dynamic routing protocol. Static routing protocol have only uh, hmm, this is actually a wrong diagram. This is I will just share the arrow. Actually, the all the routing protocol is a type of dynamic routing protocol, and a static routing protocol that means all the routing information enter on router in manual process. Okay, so this is a static routing protocol, and dynamic routing protocol all the routing information update on neighbor router it automatically. Okay, so it classify into three different mode: distance vector routing protocol, link state routing protocol, and one more routing protocol, hybrid routing protocol. Okay, so distance routing protocols that means it's only used for RIP routing protocols used in distance routing protocol, and link state routing protocol it cover only IGRP and EIGRP, and hybrid routing protocol cover in OSPF routing protocol. Okay, so basically it's in a dynamic routing protocol three different category: distance vector routing protocol, a link state, and a hybrid routing protocol. Okay, so let's say explain one by one. So what is static routing protocol and what is advantage and disadvantage of routing protocol? Okay. Initially, static routing protocol are used when the administrator manually assign to path from the source and destination address. Okay, so this is important part. That means a static routing protocol in configure manually. Suppose in a source IP address, this is a source IP address, and this is a destination IP address, right? And internally it connected with help of ISP connection. So data transfer to PC number 1 to PC number 2
via ISP. That means it entered the static routing. It entered the static routing. That means PC number one, PC number one, and PC number two. So enter manually routes to reach to destination IP address via ISP IP address. Okay, so this is a static routing. The static routing is a, more critical and more critical to configure multiple numbers of users, because each user assigned a specific path. But it is a more secure, but because those hopes are enter a specific route, it able to communicate, otherwise not able to communicate. Okay, so this is advantage of static routing. No overhead on router CPU, not huge in bandwidth between the links. ठीक है, only the administratively able at the routes. That means सपोज कहता है कि आपके पास में यहाँ पर 100 यूजर्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 यूजर्स आप ISP से कनेक्टेड है, बट मैं जो राउटर ये PC नंबर वन जो है वो सिर्फ दो यूजर से ही कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे PC नंबर टू से कर रहा है एंड PC नंबर थ्री से कर रहा है। रेस्ट ऑफ जो यूजर है उसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि हमने क्या किया, उसके अंदर में आपने राउट्स एंटर नहीं किया, मैन्युअली राउट्स एंटर नहीं किया, राइट। तो एक तो सिक्योरिटी पर्पज से बेटर है कि जिसका हम राउट एंटर करेंगे वो उसी से कम्युनिकेट करेगा, रेस्ट ऑफ यूजर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्लियर। लेकिन जब आपका यूज कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट मीन्स उसका क्या होता है, बैंडविड्थ का तो उतना ही यूटिलाइज होगा जितना हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ही बेनिफिट है इसमें। जब आपके पास में राउट्स कम होगा, यानी हमने क्या हुआ, फोर यूजर से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, थ्री यूजर से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका जो राउटर के अंदर में जो CPU यूटिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर। इसमें एक डिसएडवांटेज आप कर सकते हो, डिसएडवांटेज ये है इसका कि आपने देखा कि जब जैसे ही हम कोई भी पैकेट से हम बात करते हैं कि इसमें तभी हम इसमें राउटिंग हम रिकॉर्ड कर सकते हो। राउटिंग आप सिस्टम रीच तभी करेगा जब हमारे पास नेवर जो राउटर्स का ना राउटिंग प्रोटोकॉल आपके पास में होगा, तभी आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप नहीं कर सकते हो। क्लियर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपके पास में क्या है कि सपोज मैंने क्या है कि आपके पास में मेरा लिंक है ना डाउन हो गया, मैंने नहीं होते कि ISP मेरा लिंक डाउन हो गया। तो लिंक डाउन होने का मतलब क्या है, दोनों रीजन हो सकता है, या तो क्लाइंट एंड भी हो सकता है या ISP एंड भी हो सकता है। तो जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो तब तक क्या होता है कि उसको पता नहीं चलेगा कि वो डाउन है या नहीं है। पहली डाउनफॉल इसका ये है। सेकेंड, यदि सपोज करो कि आपको 100 आपके पास में राउटर है और आपको कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक में, दैट मीन्स एंटर मैनुअली वन बाय वन राउट्स, आपको सभी में वन बाय वन राउट्स को एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मोर हैट्रिक टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो ये इसका दो डिसएडवांटेज है कि ये कभी भी एक नेवर राउटर को अपडेट नहीं करता है, और इसको कॉन्फ़िगरेशन करने में क्या होता है कि बहुत ही मतलब टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं स्टैटिक राउटिंग टाइम लगेगा। हम, हाँ स्टैटिक राउटिंग हम बहुत कम यूज करते हैं। वो सिर्फ क्या होता है कि ISP के अंदर में यदि हमारे पास में क्लाइंट का राउट्स होता है, सिर्फ वहीं पर हम स्टैटिक राउट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, सभी राउटर में कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करते इसे। ठीक है। ठीक अब है। आती बात है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से आता है। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्लियर। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, dynamic routing protocol are another important types of routing protocol. It help to route.
router to add information their routing table for connected automatically। ठीक है, यानी जैसे ही आप राउटिंग प्रोटोकॉल आप चलाएंगे तो क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल के अंदर में उसका राउट इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसको अटैच कर देता है। ठीक है, ये आपके पास में बेनिफिट है। ठीक है, इसीलिए जनरली जितनी भी आपका राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात होती है वो सभी जगह क्या होता है, हम क्या करते हैं, आपको डिफॉल्ट राउटिंग को डायनामिक। ही, हाँ डिफॉल्ट राउटिंग ही प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है कि हम इजी टू कॉन्फ़िगर, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन हम डन कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज क्या था कि सपोज क्या था, दिस दिस प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू सेंड आउट टोपोलॉजी अपडेट where the need is changing of the टोपोलॉजी स्ट्रक्चर। दैट मीन्स क्या था कि जैसी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स में चेंजिंग आएगी ना, सो इट्स ऑटोमेटिकली अपडेट। दैट मीन्स क्या था, सपोज क्या था कहीं भी 100 राउटर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपने दो राउटर अटैच हो कर दिया आपने, यानी कितना होगा, 102 हो गया, राइट। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, राउटर क्या होगा, ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में अपना सभी राउटर को अपडेट कर देगा कि एडेड टू न्यू राउटर। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, बेनिफिशियल क्या होता है कि हमें सभी को एक दूसरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम्म। इट्स अपडेट ऑटोमेटिकली टू ऑल कनेक्टेड राउटर। ठीक है। नेक्स्ट चले। ओके। तो इसका जो कुछ एडवांटेज है एंड कुछ डिसएडवांटेज है। तो इट इजी टू कॉन्फ़िगर द लार्ज नेटवर्क, है ना। It हम्म। dynamically used to route the keys the link down. It update automatically. It help to do load balancing between the multiple links। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे सपोज कहता कि मेरे पास में क्या एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है। ठीक है, अब क्या है कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है, राउटर हो गया। अब यहाँ पे कोई भी यूजर यहाँ पर है, कोई भी यूजर यहाँ पर है, और एक यूजर क्या होता है यहाँ से यहाँ पर यूजर है। ठीक है, अब यहाँ से कनेक्टेड है, हाँ। मतलब ये जो पीसी है वो तीनों राउटर से अटैच है। तो ये क्या करता है, इट इज लोड बैलेंसिंग हम्म। बिटवीन द लिंक्स। सपोज क्या है कि जब ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये इधर से कम्युनिकेट हो रहा था, जब दोनों का राउटर में क्या होता है कि आपका लोड इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ट्रैफिक यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये इस तरह से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, सबसे हाँ। ये बेनिफिट है कि आपका ये डिस्कस करता है कि जैसे भी आपका लिंक कोई भी आपका हो, यदि लिंक में कोई भी इश्यू आता है, या तो लिंक में आपका लिंक डाउन हो गया, पुश डाउन, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पाथ चेंज कर देगा। हम्म। एंड सेकेंड थिंग क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होता है, रूट को है ना, पाथ है, यदि लोड चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लोड को चेंज कर देता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसका जो वही दिक्कत आता है कि इसमें जो डिसएडवांटेज है ना, इसमें क्या है कि अपडेट शेयर बिटवीन द राउटर्स कंज्यूम द बैंडविड्थ, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। एंड जैसे ही हम करते हैं तो उसमें एडिशनली जो सीपीयू और रैम क्या होता है, यूटिलाइजेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, जो आपका हाँ। स्टैटिक राउट में नहीं था। स्टैटिक राउट में दो बेनिफिट था कि इसका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन कम होता था और सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होता था, बट यहाँ पर आपका ये दोनों ऐड ऑन हो जाएगा कि आपका जैसे ही हम ऐड ऑन करेंगे तो उसमें डायनेमिकली आपको अटैच हो जाएगा। क्लियर। तो ओके सर। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू से दिखा रहा हूँ कि ये आपका टॉपिक के हम वन बाई वन डिस्कस करते चलेंगे। ये हमने देखा कि हाँ। स्टैटिक राउटिंग देखा हमने, हमें माइंड में ये कॉन्सेप्ट हो गया कि स्टैटिक में और डिफॉल्ट में डिफरेंस क्या है। स्टैटिक में देखा कि हाँ। हमने, हाँ मैनुअली जैसे हमने किया
तो हमें वन बाय वन आपको राउट को कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। डायनेमिकली में अपडेट तो हो रहा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आपके पास में उसमें आपको अलग से प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए क्या होता है, जैसे हमारे पास में सीसीएनए के अंदर में और सीसीएनपी लेवल तक आपका दो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप एक जो होता है आपको पैकेट ट्रेसर होता है, एंड वन मोर एक जीएनएस भी होता है, जो इंडस्ट्री में आप यूजेबल है। आप यहाँ से यूज कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। ठीक है। तो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ जैसे क्या कि ये क्लिक करते हो आपको आप कर्सर दिख रहा है। हाँ सर। जैसे ये आपका एक राउटर यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल एक नहीं दिख राउटर रहा हम सर, ये आपका वो पीडीएफ, पीडीएफ ही खुला हुआ है। ओके पीडीएफ खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक नया स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ फिर से, इसका पैकेट ट्रेसर वाला। ओके क्लियर। हाँ सर। ओके, सो अब देखो इसमें कनेक्शन के लिए जैसे हमारे पास ये दो राउटर आपके पास में है, राइट। अब ओके सर। राउटर को हमें अटैच करना होगा, राउटर टू राउटर अटैच होगा। तो इनिशियली हम उसको कैसे अटैच करेंगे, यहाँ से आप केबल लेंगे, इसको ऑटो केबल कहते हैं। आप इसको डबल क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब देखो इसमें इंटरफेस तो दिख रहा है, बट उसका राउटर का नेम नहीं शो कर रहा है, और उसमें आपको नेम भी नहीं शो कर रहा है, और साथ में उसका इंटरफेस नहीं शो कर रहा। तो आप यहाँ पर जाइए ऑप्शन में, प्रेफरेंस में जाओ। प्रेफरेंस में जाने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, डिवाइस से नेम शो कौन होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, शो पोर्ट नंबर, है ना। ठीक है, जैसे ही ये दो ऑप्शन को हम लोग अप्लाई किए, देखिए आ गया यहाँ पर आपका राउटर का नाम भी आ गया और इंटरफेस के नेम भी आ गया, क्लियर। अब जैसे मुझे दोनों ये दो राउटर को ही मुझे कम्युनिकेट कराना है। मुझे नहीं पता कि हमारे पास राउटर्स कितने हैं, इनिशियली हम दो राउटर्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप राउटर को ऑन करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे कि CLI मोड में जाएंगे, यहाँ पर CLI लिखा हुआ, CLI हाँ सर। कीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप इनिशियली नो लिखिएगा। देखिए यहाँ पर आ गया आपको, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले किस मोड के अंदर में काम कर रहा है राउटर, राउटर किस मोड में काम कर रहा है, राउटर किस मोड में काम कर रहा है, ये राउटर आपका काम कर रहा है, ये आपका यूजर मोड में काम कर रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ, कैसे पता सर? जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा यूजर, ठीक है। यानी राउटर इस तरह से ओके सर। लिखा हुआ आएगा, मतलब ये कौन सा है, यूजर मोड है, ठीक है। ओके सर। ये प्रिविलेज मोड कब आएगा, जब राउटर इस तरह से लिखा हुआ, आपको हैश लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से आएगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड जो होगा, कॉन्फ़िगर मोड होता है। कॉन्फ़िगर मोड का और एक नाम होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल मोड कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका रहेगा राउटर यहाँ पर ऐसे कन्फिग रहेगा, और एंड इस तरह से रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमें बेनिफिट क्या है, हम राउटर को हम इस तरह से यूज क्या क्यों करेंगे, हम हमें पर्पज क्या है, राइट। तो इनिशियली जो हाँ सर। आपका यूजर मोड होता है, बेसिकली यूज फॉर यूजर इंटरेक्शन पर्पज। यूजर इंटरेक्शन मीन्स, दैट मीन्स जैसे ही हम यूजर हम कोई राउटर को ऑन करेंगे, वो किस मोड में, बाय डिफॉल्ट किस मोड में जाएगा, यूजर मोड में जाएगा। दैट मीन्स हमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की बात करेंगे, तो हमें क्या होगा, यूजर मोड में कनेक्ट करना होगा, क्लियर। सेकंड, अब प्रिविलेज मोड के अंदर में क्या होता है, प्रिविलेज मोड में जो आपको प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कब को राउटर को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना होगा। सो गो टू प्रिविलेज मोड, ठीक है। एंड उसमें कोई भी राउटर को कॉन्फ़िगर करना होगा, तो किस मोड में हम जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर में जाएंगे, ठीक है।
और एक जो होता है आपका इंटरफेस मोड भी होता है। इंटरफेस मोड का मतलब, यदि सपोज मैं किसी राउटर का इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उसको इंटरफेस मोड कहेंगे। क्लियर? याद है? क्लियर है? अच्छा। ओके। ओके। सो मैं अब इसको अ, हाँ मैं सर। कन्फिग इस राउटर को मैं कॉन्फ़िगर कराऊँ, तो राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे हम? सिंपल, मैं इसको राउटर को क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो यह राउटर देखो, ये आ गए यहाँ पर। ये किस मोड में आ गया? इनेबल, यूजर यूजर मोड में मोड। है। अब जैसे ही मैंने इनेबल टाइप किया, तो किस में आ गया? प्रिविलेज मोड में आ गया, है ना। अब प्रिविलेज अच्छा। से बैक जाना होगा, क्या होगा? डिसेबल मोड हम लिख देंगे, तो बैक चले जाएंगे आप, फिर चले जाएंगे यूजर मोड में चले जाओगे आप, ठीक है। तो इनेबल जो कमांड ओके लिखते सर। हैं, वो किसके लिए होता है? कि यूजर मोड टू प्रिविलेज मोड। डिसेबल कब करेंगे? जो प्रिविलेज मोड टू यूजर मोड, ठीक है ना। यूजर मोड। ओके। हाँ। अब हम क्या करेंगे? कन्फिग टी मतलब किस में आ गए हम लोग? ग्लोबल मोड में आ गए। कंफ्यूज। हाँ। जैसे सपोज मुझे राउटर का इसको नाम चेंज करना है, तो लिखेंगे आप होस्ट नेम स्पेस, सपोज हमने लिख लिया R1, ठीक है। ओके। या जैसे मान लो कि हमने, हाँ, R1 लिख दिया, आप होस्ट और भी कुछ से कर सकते हो चेंज अपनी मर्जी से। दैट मीन्स जैसे मैंने शशि चाहिए तो आपको राउटर नाम शशि चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अब आपको हम लिखेंगे ये सेकंड, इस इंटरफेस पे भी जाते हैं, सेम यही हम काम करेंगे। यानी राउटर को हम ऑन करते हैं, सिंपल, तो हमने नो लिखा। नो। अभी किस में होगा? इनेबल मोड, कॉन्फ़िग टी, एंड होस्ट नेम हमने किया किया, इसको लिख दिया हमने R2। क्लियर? सो अभी दोनों राउटर किस मोड में है? ओके सर। कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यदि सपोज इस कॉन्फ़िगरेशन मोड राउटर, में। हाँ, इस राउटर पे मुझे कुछ यहाँ पर आईपी देना है, यहाँ पर मुझे कुछ आईपी डालना है, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूँ कि इस इंटरफेस पर, ये जो आपका कर्सर चल रहा है, इस इंटरफेस में मैं नाम क्या लिख दूं मैं? एक आईपी एड्रेस लिख दूं। तो आईपी एड्रेस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि इस पर जो आईपी लिख दिया 192.168.10.1 लिख दिया, /24। ओके। और सेकंड वाला जो राउटर है उस पर रख लिया 168.10.2/24। ओके। क्लियर? मतलब दोनों पर क्या हुआ, एक पर जो हमने राउटर के क्या कर दिया, उसका राउटर के ये आपका ये आईपी डाल दिया, एंड सेकंड पर हमने ये वाला आईपी डाल दिया। ठीक है। आईपी का मतलब क्या है कि जब तक हाँ। आप इंटरफेस पर, यानी इस इंटरफेस पर आप आईपी नहीं डालोगे, तब तक ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब आईपी डालते हो, तो दोनों इंटरफेस पर क्या होता है, सेम रेंज के आईपी एड्रेस होना चाहिए। सेम आईपी एड्रेस नहीं होना चाहिए, सेम रेंज के आईपी एड्रेस होना सेम चाहिए। रेंज का। हाँ। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाया था आपको, तो उसमें देखिएगा ये क्या है कि आपका कौन सा क्लास क्या है? क्लास सी का आईपी एड्रेस है। यानी क्या है कि देखो ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। बट ये .1 है, एंड ये क्या होता है कि आपका .2 है। डॉट मतलब वन किसका है? ये वाला इंटरफेस का आईपी हो जाएगा, एंड .2 क्या होगा? इसका इंटरफेस का आईपी होगा, दूसरे वाला आईपी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है। क्लियर? ओके। ठीक है। मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्टॉप।